Q is equals to omega naught L upon R. This was the formula of quality factor we studied in the last video. So good morning everyone. Again we are in a new session with some new topics and one numerical which I left in the last class. So let us do that numerical and quickly with the help of that numerical we will brief out what we studied in the previous video lectures. Okay, so let me take you to the numerical. This is our numerical. Here you can see example number 7.6. what is there? A resistor of 200 ohm. You are given resistor of 200 ohm and capacitor 15 microfarad, capacitance 15 microfarad. Micro you can convert into farad by 10 to the power minus 6 are connected in series. So this is a series combination of R and C. RC circuit it is to 220 volt. 220 volt means this is the value of VRMS. 220 volt जो हमें मिलते हैं VRMS voltage होते हैं. Frequency is given to us, it is 50 hertz. Okay, first part, calculate the current in the circuit. They are asking current only. They said current only. If you know that this is VRMS, then about current if they are asking, then you would calculate IRMS. Okay children, IRMS. Now what will be IRMS? IRMS will be VRMS upon Z. What is Z? Z is impedance. Impedance formula is R square plus XL minus XC whole square. There is no inductor in the circuit. That means the value of XL will be equal to 0. So XL is 0, XC you can find by applying formula 1 upon omega C, right? R, the value of R is given in the circuit, so you can find out the formula of the value of Z using it, and answer you will get like this, 291.67. this will be your answer for Z. After getting Z, what you can do? IRMS is equal to VRMS upon Z, and ultimately you will get this answer. Let us see next part. What are they asking? They are asking calculate the voltage. Okay, then after this what we can see here, here in the B part, this is your B part. Okay, calculate the voltage RMS across the resistor and capacitor. So if this was the combination of these two, resistor and capacitor, across the AC voltage source, then what are they saying us? They are saying us to calculate RMS voltage across resistor and RMS voltage across capacitor. This they are asking, right? So how can we do this question? Look here only I will let you understand. We know that in series current remains same. So across a resistor, suppose I current which we calculated here, it is flowing, then V is equals to IR. Using this expression we can write VR is equals to IR, and across capacitor VC is equals to I into XC. After keeping values of both the things we can have our answer. This was your numerical. Like this we can perform our solution. Is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? So we have to check that. First of all you check here, the source voltage was 220 volt, right? Now after this the voltages across RMS voltages across resistor is 151 and across this is 160, and the addition of these two we are getting equal to 311 volt. अब ये 311 है और VRMS कितना था? 220 वोल्ट था, ठीक है, which is more than the source voltage 220. How to resolve this paradox? तो मतलब ये गड़बड़ क्या है कि यहाँ ऐड करने पर 311 आया, जबकि ऐड करने पर क्या आना चाहिए था? 220 आना चाहिए था. As you have learnt in the text, the two voltages are not same in phase. ये जो दोनों वोल्टेज थे ना VR और VC, बच्चों यहाँ पर हमें ऐड करने पर ये टोटल V क्यों नहीं मिला जो हमने अप्लाई किया था? क्योंकि V क्या होता है, VR क्या होता है? VR जो है करंट के साथ सेम फेस में रहता है, जबकि कैपेसिटर के केस में ये क्या रहता है? आउट ऑफ फेस रहा करता है ना? ये क्या रहा करता है? आउट ऑफ फेस रहा करता है. इसी की वजह से हम इनको क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, लाइक वी कैन ऐड अदर ऑर्डिनरी नंबर्स.
टू वोल्टेजेस आर आउट ऑफ फेस बाय 90 डिग्री। भाई इनके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। देयरफॉर द टोटल ऑफ दीज वोल्टेजेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस है इनके बीच में, तो पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड पाइथागोरस जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तब आपका आंसर आएगा 220 वोल्ट, ये इस तरीके से। तो ये थी इसमें थर्ड थिंग क्वेश्चन में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई ऐड करने पर वोल्टेजेस बराबर क्यों नहीं आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है पावर फैक्टर वाला, ये पहले से सिलेबस से हटा दिया। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, कल बता चुका था। इसमें ये कुछ नहीं पढ़ना। ये जो न्यूमेरिकल है ये भी पावर फैक्टर पर बेस्ड है। अब टॉपिक गया तो न्यूमेरिकल भी गया। ऐसा तो है नहीं कि हम टॉपिक छोड़ देंगे और न्यूमेरिकल पढ़ने बैठ जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये एक 7.8 एग्जाम्पल है, ये आप अपने आप से लगा करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एग्जाम्पल 7.9 है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन द प्रीवियस, अच्छा ये प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है तो ये भी आप लोगों के लिए हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोर वे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सम रीजन्स। इफ ही इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड। मतलब मेटल डिटेक्टर क्या है, साउंड करता है अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के जा रहे हो जो मेटल की बनी हुई है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क। तो ये डिटेक्टर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मेटल डिटेक्टर, एक मिनट बच्चों, मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये रेजोनेंस पर वर्क करता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ हो रही है और साथ ही वही चीज़ आपके सिलेबस में भी है, तो वही चीज़ समझ लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वर्क थ्रू अ मेटल डिटेक्टर यू आर इन फैक्ट वर्किंग थ्रू अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। तो वो क्या है, ये जो मेटल डिटेक्टर से आप एंटर करते हो ये क्या है असल में, ये एक कॉइल समझ सकते हो आप, है ना, कि एक बहुत ही बड़ी कॉइल है जिस कॉइल से होकर के आप जो है जा रहे हैं। कॉइल कह दीजिए या इंडक्टर कह दीजिए। कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ट्यून्ड सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस। देखिए कॉइल आ गई और कॉइल के साथ इन्होंने कहा कि कैपेसिटर लगा हुआ है, तो क्या चीज़ें आ गई आपके पास यहाँ पर, एल और सी आ गया। एल और सी आ गया मतलब एक ऐसा सर्किट जो क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और जैसे ही आप उससे पास करेंगे, जैसे ही कोई मेटल की चीज़ लेकर के आप उससे पास करेंगे तो तुरंत रेजोनेंस की कंडीशन एक्ट करेगी, जिसकी वजह से सी दिस चेंज इन करंट इज डिटेक्टेड एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कॉजेज अ साउंड। तो एक करंट डिटेक्ट होगा जैसे ही आप उसके थ्रू पास होंगे और उसी करंट की वजह से साउंड जो होगा वहाँ पर एमिट होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई मेटल की चीज़ कोई इंसान लेकर के यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है आप लोगों के लिए एलसी ऑसिलेशन। अब एलसी ऑसिलेशन क्या है देखिए, एलसी ऑसिलेशंस मतलब सर्किट रहेगा आपके सामने जैसे दिखा रखा है, कैपेसिटर रहेगा और एक इंडक्टर रहेगा। हमने क्या किया, सपोज करिए कैपेसिटर कैसा लिया है, चार्ज्ड लिया है, चार्ज्ड कैपेसिटर था और इसके ही सीरीज़ में हमने यहाँ पर मतलब इस तरीके से सीरीज़ समझ लीजिए, पैरेलल समझ लीजिए, क्या मतलब जो आपके सामने है ना, ये इंडक्टर लिया। इंडक्टर जो था अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही आप इसे यहाँ कनेक्ट करोगे क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर से इंडक्टर पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इंडक्टर पर और फिर इंडक्टर से कहाँ चला जाएगा, फिर दोबारा से ये कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल्स बन जाएंगी, है ना, ये साइकिल्स बन जाएंगी। और ये जो साइकिल होगी मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर कैपेसिटर पर आया, फिर कैपेसिटर से यहाँ जाएगा, इंडक्टर से फिर इस तरीके से जाएगा। तो क्या होगा कि एक बार तो आपकी साइकिल बनेगी एक डायरेक्शन में, दूसरी बार साइकिल बनेगी दूसरी डायरेक्शन में। ये दोनों हाफ साइकिल मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बना देंगे। और अगर कंप्लीट साइकिल कुछ इस तरीके से है तो ये तो आपको समझ में आता होगा ना कि भाई इस चीज़ की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो वही फ्रीक्वेंसी जो है किससे पता कर सकते हैं हम, एल और सी की वैल्यू से पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की तो ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखते हैं क्या है, लेट अ कैपेसिटर। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ कैपेसिटर बी चार्ज्ड मतलब उस पर चार्ज दिया हमने उसको, क्यू एम चार्ज आ गया, टी इज इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली इतना चार्ज था,
एंड कनेक्टेड टू इंडक्टर, इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, चार्ज कैपेसिटर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी सर्किट के अंदर। ठीक है, जो करंट फ्लो होगी मतलब करंट चेंज होगी सर्किट में टाइम के साथ साथ, ये चेंज कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी एल के अंदर, है ना, उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, जैसे आपको यहाँ पर सर्किट में दिखा रखी है। देखिए, अगर ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट थी तो इधर से करंट आएगा और इंडक्टर में इस तरीके से जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जिधर से एंटर करता है उधर पॉजिटिव रहता है, जिधर से एग्जिट करता है उधर नेगेटिव होता है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। अब इसके बाद किरचॉफ्स रूल अपना हमने अप्लाई कर लिया। क्या हुआ करता था, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका LC के लिए, बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं तो डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये दिख रहा है आपको, ये इन द प्रेजेंट केस एज Q डिक्रीजेज I इंक्रीजेज, देयर फोर इक्वेशन बिकम्स। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, देखिए I की जगह पर आपने क्या रख लिया, डी क्यू बाई डी टी रख लिया। I की जगह पर आपने डी क्यू बाई डी टी रख लिया, साथ में ये Q जो था, ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, ये इधर चली गई है और ये जो ये वाली टर्म थी ये इधर आ गई है। ठीक है, तो इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा बिल्कुल भी। ये I इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि चार्ज जो है घटता जा रहा है लगातार, है ना, कैपेसिटर से लगातार चार्ज जो है घटता चला जा रहा है, तो I की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी क्यू बाय डी टी हो जाएगी, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, ये माइनस माइनस ये जो हो गया ये प्लस हो गया। ठीक, और डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। L कहाँ गया, L से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, इसलिए L जो है यहाँ पर आ गया, 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू, ये हो गई इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है इसमें इक्वेशन, अब देखिए फिर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, है ना। अब ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये रहा, Q इज इक्वल्स टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी यहाँ पर लिया है हमने क्योंकि हम देखिए द चार्ज ऑन कैपेसिटर देयरफॉर ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। यही फ्रीक्वेंसी होगी इस सर्किट की, तो इसी फ्रीक्वेंसी पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। क्यू एम क्या है, क्यू एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है। फाई क्या है, फाई जो है फेज डिफरेंस है। अब जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो q किसके बराबर आया, क्यू एम के, है ना। और cos फाई कितना हो जाएगा 1, cos फाई हो जाएगा 1, फाई कितना आ जाएगा 0। इसीलिए अब देखिए इसके बाद प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है। अभी हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के बाद हमने देखिए क्या किया, इस इक्वेशन के बाद हमारा आंसर देखिए, मैं ये रिलेट करना पड़ेगा, हाँ जी, ये देखिए फाई क्या हो गया था, 0 हो गया था t इज इक्वल्स टू 0 पर। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर फाई जो है 0 हो गया तो ये इक्वेशन हो गई सिर्फ इतनी, q इज इक्वल टू पी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, अब करंट कितना है, करंट है हमारे पास में I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आपने वैल्यू पुट की, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद साइन वगैरह आ गया, यहाँ पर भी माइनस माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आई एम कितना हो गया, ओमेगा नॉट क्यू एम। इतना ही बच्चों याद होगा अगर आपको RLC सर्किट में भी आया था, वहाँ पर भी हमने यही लिखा था क्यू एम ओमेगा। यहाँ पर फ़र्क क्या है भाई, यहाँ पर ओमेगा नॉट आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ L और C चीज़ें हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर figure shows a capacitor with initial charge Qm connected to an ideal inductor. Electrical energy stored in the charged capacitor. ये इतनी एनर्जी होगी जो चार्ज कैपेसिटर था शुरुआत में। ये जो चार्ज कैपेसिटर था यहाँ पर इतनी एनर्जी हुआ करती है, हमने पढ़ रखा है फार्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C। सिंस देयर इज़ नो करंट इन सर्किट, एनर्जी इन इंडक्टर इज 0, और उस टाइम पर इनिशियली इंडक्टर में क्या रहेगी, एनर्जी 0 रहेगी। तो टोटल एनर्जी जो हो गई एलसी सर्किट की वो कितनी हो गई, यही हो जाएगी जितनी कैपेसिटर के अंदर थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एट टी इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग एज द करंट इंक्रीजेज। अब करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर एंड देयर बाय सम एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, इतना 1/2 Li स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपने इसको स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही सर्किट में फ्लो करने लगा करंट।
करंट टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। अगर वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी होगी 1/2 Li²। एज द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू Im, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड 1/2 Lim²। जैसे ही करंट क्या हो जाएगा, बढ़ते 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 करंट क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू है Im, मैक्सिमम वैल्यू है Im। Im वैल्यू पहुंचने पर क्या मिलेगा, Im वैल्यू पहुंचने पर हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल एनर्जी जो है, जो हमारी कैपेसिटर के अंदर थी, इसका मतलब क्या हो चुकी होगी, वो ट्रांसफ़र हो चुकी होगी इस इंडक्टर के अंदर। अब इंडक्टर के अंदर जो है टोटल एनर्जी आ चुकी है। ये देखिए, यही आपको इस सर्किट में दिखा रखा है। कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई, इंडक्टर में आ गई। ठीक, अब क्या होगा, अब इंडक्टर जो है, इंडक्टर करंट को जो है रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब इंडक्टर में कोई भी चेंज होना बंद हो गया था, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो फ्लो होने लगेगा, सॉरी ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा, Im फ्लो होने लगा था, है ना। अब क्या हो गया, कैपेसिटर की तो एनर्जी ज़ीरो हो गई, और तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता इसको, तो क्या होगा, ये इंडक्टर एनर्जी प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर को। कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो इससे इंडक्टर से करंट गया कैपेसिटर की तरफ, और इस बार देखिए ये कौन सी प्लेट जो है पॉजिटिव बन रही है, लोअर प्लेट। पिछली बार कौन सी थी, पॉजिटिव प्लेट थी। ये तो हमने इनिशियल कंडीशन ली थी यहाँ पर, ये जो है हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ली थी, है ना, लेकिन यहाँ पर करंट की वजह से पोलैरिटी आई, करंट इधर से एंटर कर रहा था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा कि एनर्जी जो है, एनर्जी इधर ट्रांसफ़र होती रहेगी, इंडक्टर से इस कैपेसिटर पर ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो हो गई। अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडक्टर में फिर से एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और कैपेसिटर में फिर से एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है कि एनर्जी जो है एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी से पहली तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब देखिए एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, यहाँ तक ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा, T/4 तक, ठीक है। फिर T/4 तक क्या होगा, ये वाला प्रोसेस चलेगा। अब T/4 और T/4 मिलकर के कितने हो गए, T/2 हो गए, यानी कि अभी तक आपकी कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। सीधी सी बात है, हमें पता है कि भाई अगर दूसरी हाफ साइकिल चाहिए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और होगा भी। जैसे ही सारी एनर्जी यहाँ आ गई थी, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, अब जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी, करंट इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से एनर्जी इंडक्टर पर जाएगी, कितने टाइम में चली जाएगी, T/4 में। इंडक्टर से एनर्जी किस पर चली जाएगी, कैपेसिटर पर, कितने टाइम में, T/4 में। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, T/2, और वही T/2 हमें यहाँ ऐसे मिले। तो इस तरीके से करके क्या है भाई, ये ऑसिलेशंस आपको मिलती चली जाएंगी, है ना। इसीलिए हम LC सर्किट को ऑसिलेटर भी कहते हैं, LC सर्किट को ऑसिलेटर भी कहा जाता है। और एनर्जी टोटल सर्किट में क्या रही, कांस्टेंट रही हमेशा। ठीक है, तो ये थी आपकी LC ऑसिलेशंस। ठीक, बाकी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ऐसी कोई इसमें कुछ खास बात है नहीं, बस यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रखा है। ये मैकेनिकल सिस्टम है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ा जो आपने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ ऐसी कुछ खास बात नहीं है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ हो गया ख़त्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास ट्रांसफार्मर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो है आज का जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, LC ऑसिलेटर। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, जो इक्वेशंस थी उनको याद कर लीजिएगा और अपना रिवीजन करते रहिए। टिल देन टेक केयर।